Good morning. This is Dr. Nirmala Mullik. Today, on 17th Jan 2022, the class is HVDC, transmission and facts control. Today, we are going to study about HVDC control characteristics. Good morning. Good morning, sir. We are going to start this class within 2 minutes. Am I audible? Yes, sir. Okay. So I'm going to share my screen. Okay. So at first, we are going to study how we can control the HVDC link. Before that, let us discuss about the power reversal in brief because it is required later in our classes. Power reversal. Though I have made one separate section for this and uploaded the video regarding this power reversal, but फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ कि power reversal में क्या हो रहा है. Suppose this is one area number 1, and here we have connected the rectifier.
this is suppose your rectifier station. This is DC link. Again, it is our inverter section. This is area number 2. And we have assumed that the voltage in area number 1 is VA1 and voltage in area number 2 is VA2. And direction of current, the assumed direction of current is here. And assumed direction of power flow is this. This direction we have just assumed that हम लोग सोचे कि इधर from A1 to A2 current जा रहा है and from A1 to A2 power भी flow रहा है. ये हम लोग पहले pre assumption कर लिए, ठीक है, हम लोग pre इसको assume कर लिए. उसके बाद we know the formula about DC power, that is PD equals to VD into ID. If here VD is nothing but the DC link voltage, ये जो मेरा लिंक है DC link, उसका voltage, DC link voltage, and ID is nothing but the DC link current. Here, if VD it is greater than 0, that means DC link voltage, the polarity is positive. Polarity is positive. Then what will happen? This VD, this term is positive. That means PD is proportional to ID. And what do you think about this thing? Tell me, PD is proportional to ID. इसका मतलब क्या है? बताओ, अभिजीत. सर अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो सर पावर भी इंक्रीज होगा. या करंट को इंक्रीज करेंगे पावर भी इंक्रीज होगा एंड द डायरेक्शन इज सेम. द डायरेक्शन ऑफ पावर एंड करंट इज सेम. ओके, नाउ सपोज the voltage polarity, this is negative. The DC link voltage polarity is negative. Okay, then we may see that PD is proportional to minus ID. Okay, this minus sign comes due to this. This minus sign comes due to this as VD is negative. VD negative, that means suppose VD is minus 5, ID is 2, then PD will be minus 10. That means PD is proportional to minus ID. Okay, and here it means say पिछला वाला क्या था, same direction, and इधर क्या होगा, opposite direction. That means current जिधर जा रहा है power ठीक उसका opposite जाएगा. ठीक है, current जिधर flow होगा power उसका opposite जाएगा. अब थोड़ा example ले लेते हैं, जैसे case 1. इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि करंट जिधर जाएगा पावर ऑपोजिट कैसे जा रहा है, इसका मतलब भी हम लोग समझेंगे. पहले केस 1 ले लेते हैं. केस 1 के लिए ये जो फिगर है एक बार मैं फिर से इसको ड्रॉ कर लेता हूं. दिस इज एरिया 1, दिस इज DC link, and here suppose this is area 2, and direction of current it is assumed in this direction, direction of power it is assumed in this direction. Suppose VA1 is nothing but 10 voltage and VA2 is 5 voltage. Now you tell me, and the DC link resistance is RD. Now you tell me current direction क्या होगा? Current का direction क्या होगा? ID? A1 से A2 पे. A1 से A2 जाएगा, because here VA1 minus VA2 by R, it is 10 minus 5 by R, that is greater than 0. Okay, it is 5 by R, that means it is greater than 0, and ID is greater than 0. ID is greater than 0. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग जो direction assume किए थे, that direction is correct. Okay, ID का value greater than 0 आया, that means that direction is correct. Now power क्या होगा? PD is equal to VD into ID. Here हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि VD is positive. VD का जो polarity है, that is positive. Okay,
+10 +5 VD का पोलैरिटी पॉजिटिव, दैट मींस पावर का जो डायरेक्शन होगा वो सेम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आईडी भी पॉजिटिव है। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, VD इज पॉजिटिव, VD इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव, आईडी भी मुझे मिल गया पॉजिटिव, दैट मींस पावर क्या होगा, पावर ही मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, दैट मींस ग्रेटर देन 0। अब पावर पॉजिटिव मतलब हम लोग जो डायरेक्शन एज्यूम किए थे दैट डायरेक्शन इज करंट, दैट मींस आवर प्री एज्यूम डायरेक्शन इज करंट, करेक्ट, एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। ओके, इज इट ओके, समझे? यस सर। मतलब दोनों क्वांटिटी आईडीवी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पीडीवी ग्रेटर देन 0 आया है, दैट मींस मेरा जो प्री assumption दैट इज करेक्ट। नाउ हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑपोजिट, जैसे केस 2। केस 2 में क्या होगा, सपोज हम लोग मान लिए कि पोलैरिटी, वोल्टेज पोलैरिटी ऑपोजिट हो चुका है, नेगेटिव हो गया, ठीक है, वोल्टेज पोलैरिटी। अब वोल्टेज पोलैरिटी जो होगा इन्वर्टर या फिर रेक्टिफायर किसी एक का नहीं होगा, होगा तो दोनों का ही ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सपोज इट इज नेगेटिव करेंटली, अब मान लेते हैं कि दिस इज द स्टेशन, दिस इज अनदर स्टेशन, VA1 VA2, यहाँ पर भी मैंने मान लिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट दिस एंड PD इज दिस, डायरेक्शन ऑफ करंट ये हम लोग मान ली, ये प्री एज्यूम कर ली। अच्छा अब देखते हैं, VA1 पहले क्या था 10, अब मान लिए कि इट इज -10, VA2 पहले क्या था 5, अब मान लिए -5। अब देखते हैं आईडी क्या होगा, आईडी इज इक्वल्स टू, मेरा डायरेक्शन क्या है करंट का, इधर मेरा डायरेक्शन है करंट का इधर, मतलब V1 से VA2, ओके, डिवाइड बाय R, -10 माइनस ऑफ -5 R, that means it is -5 by R, that means it is negative, we are getting that current direction is negative। इसका मतलब क्या, करंट डायरेक्शन नेगेटिव, इसका मतलब क्या, करंट अपोजिट हो रहा है राइट, A2 to A1 राइट, VA1। करंट का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस करंट हम लोग जो एज्यूम किए वहां पर नहीं है, इट इज जस्ट द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्री assumption, opposite direction of our pre assumption, that means current जाएगा, it will flow from A2 to A1, right? अब पावर देख लेते हैं, PD is equals to VD into ID। मुझे यहाँ पर क्या मिला, मुझे यहाँ पर मिला कि जो VD है दैट इज नेगेटिव, ID जो मिला दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, सो पावर डायरेक्शन क्या है, PD नेगेटिव इंटू नेगेटिव, PD इज पॉजिटिव। अब PD पॉजिटिव का मतलब क्या है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस PD पॉजिटिव, बताओ? पावर सेम डायरेक्शन में ही पावर सेम डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जो हम लोग एज्यूम किए थे, A1 to A2। यस, सेम डायरेक्शन एज प्री assumption, मतलब A1 to A2। तब देखे कि वोल्टेज पोलैरिटी नेगेटिव हो गया, तो इसका वन कंक्लूजन क्या है, वोल्टेज पोलैरिटी नेगेटिव, वोल्टेज पोलैरिटी नेगेटिव, ओके, वोल्टेज पोलैरिटी नेगेटिव, बट पावर इज जस्ट, मैंने क्या बताया था, PD इज प्रोपोर्शनल टू -ID, दैट मींस पावर जो A1 से A2 जा रहा है, लेकिन करंट A2 से A1 जा रहा है, मतलब पावर डायरेक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ करंट डायरेक्शन। इज इट ओके, समझे ये? यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई पावर रिवर्सल हुआ, पावर तो A1 से पहले भी A2 जा रहा है, अभी भी A1 से A2 जा रहा है, पावर रिवर्सल अभी तक नहीं हुआ। अब पावर रिवर्सल के लिए केस 3 मान लेते हैं, केस 3 में क्या है, suppose this is one station, this is another station, right now I can't say which one is converter, which one is inverter, because power मुझे रिवर्सल चाहिए, that means जो A2 वाला स्टेशन है, A2 वाला स्टेशन रेक्टिफायर में काम करेगा, A1 स्टेशन को इन्वर्टर में काम करना चाहिए। हम लोग पावर का डायरेक्शन देखेंगे, उस हिसाब से देखेंगे कि कौन सा वाला इन्वर्टर कौन सा वाला रेक्टिफायर में काम करेगा, ठीक है। हम लोग फिर से क्या किए, एज्यूम कर लिए करंट डायरेक्शन, दिस इज ID, हम लोग फिर से पावर डायरेक्शन एज्यूम कर लिए। अब मैं बता रहा हूं कि VA1 सपोज इट इज -5 वोल्टेज एंड VA2
इज इक्वल टू -10 वोल्टेज। सो व्हाट इज करंट? करंट क्या होगा बोलो? पहले VA1 था -10, अब मैंने ऑपोजिट कर दिया, उसका वैल्यू चेंज कर दिया। मतलब अब वैल्यू देखो कौन सा वाला ज्यादा है, VA1 इज ग्रेटर देन VA2। सो करंट डायरेक्शन क्या होगा? A1 A1 से से A2 A2 जाएगा, क्योंकि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाएगा। करंट विल ऑलवेज फ्लो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। करंट ऑलवेज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ठीक है, ये जाएगा। ये ऐसे भी हम लोग देख सकते थे कि करंट डायरेक्शन मान लिए थे इधर। सो VA1 by VA2 by R, that means -5 minus minus plus 10 divided by R. So it is 5 by R, that means greater than 0. That means our direction of current is right. Okay, now what is PD? PD equals to VD into ID. ID क्या मिला मुझे? 5 by R, that means greater than 0, पॉजिटिव। हम लोगों को ID मिला पॉजिटिव। VD क्या है? VD का पोलैरिटी क्या है? नेगेटिव। DC लिंक पोलैरिटी इज नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव सर। नहीं, DC लिंक पोलैरिटी, DC लिंक पोलैरिटी वोल्टेज का, वोल्टेज का। वोल्टेज मैंने लिया था -5 -10, दैट मींस इट इज DC लिंक पोलैरिटी। DC लिंक पोलैरिटी इट इज नेगेटिव। हम लोग नेगेटिव लिए पोलैरिटी। ये लाइन का जो पोलैरिटी है, क्योंकि क्या लिए यहाँ पर -5 लिए, यहाँ पर -10, दैट मींस ये नेगेटिव पोलैरिटी में काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एकदम पहला केस में क्या लिए थे? A1 10 लिए थे, +10, A2 +5 लिए थे, दैट मींस हम लोग पॉजिटिव पोलैरिटी में काम कर रहे थे। सेकेंड केस में क्या लिए थे? A1 -10 लिए थे, A2 -5 लिए थे, दैट मींस हम लोग नेगेटिव पोलैरिटी में काम किए थे। केस 3 में भी हम लोग A1 लिए थे -5, A2 लिए -10, दैट मींस नेगेटिव पोलैरिटी में काम किए। ठीक है, यस सर। हाँ। सो DC लिंक पोलैरिटी इट इज नेगेटिव 0, एंड करंट क्या मिला? मींस मेरे को करंट मिला 5 by R, दैट मींस ग्रेटर देन 0, इट इज पॉजिटिव। सो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, पावर डायरेक्शन क्या हो गया? नेगेटिव लेस देन 0, यस सर। that means current is greater than 0, power direction is negative, less than 0, that means current direction and power direction is opposite, and what we have assumed that power is flowing from A1 to A2, it is not correct. So actually power is flowing from A2 to A1. Okay, समझो इसको? यस सर। समझ में आया? यस सर। तो पावर रिवर्सल हो चुका है। पहला केस में जो था, अभी पावर रिवर्सल हो चुका है। सो कौन सा केस में पावर रिवर्सल हुआ? वोल्टेज ऑफ A1 इज ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ A2। जैसे यहां पर देखे, वोल्टेज ऑफ A1 इज ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ A2 एंड नेगेटिव पोलैरिटी। उस केस में मेरा पावर रिवर्स हो चुका है। ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम A2 is acting as rectifier, A1 is acting as inverter. Okay. Yes sir. Okay. Now coming to next point, that is the HVDC control का दूसरा part, HVDC control. HVDC control जो हम लोग पहले ड्रॉ कर रहे थे वही देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर AC ग्रिड का वोल्टेज मान लिए ER, and this ER is nothing but, note down, you may note down with me, RMS line to line. अच्छा Saroj Kumar, please send me the screenshot of attendee. Okay sir. ER is line to line RMS AC side voltage rectifier, AC rectifier side voltage. और यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द सपोज ट्रांसफॉर्मर, कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर। लेट मी फर्स्ट ड्रॉ इट।
अच्छा, so AC side voltage is ER. This is AC. This is AC. Here this is DC, and this is again AC. In AC side, ER is the RMS line-to-line AC rectified side voltage, and this voltage is EVR. Transformer trans ratio is N1R is to N2R. Here also हम लोग देख लेते हैं. This is N2I. I stands for inverter. R stands for rectifier. This is N2I, N1I, and this is इधर का जो voltage है मेरा EVI, and this is EI. And what is EI? EI is nothing but the RMS line to line AC inverter side voltage. Inverter side voltage. Achha. Let me select this one. Now, tell me what is EVR? EVR equals to क्या होगा? EVR का वैल्यू क्या होगा? N2R divided by N1R into ER. Is it okay? Yes, sir. सेम EVI क्या होगा? EVI होगा तुम्हारा N2I divided by N1I into EI. Check it with me. Is it okay? Correct? Is it correct? Yes, sir. Okay. So हम लोग EVR and EVI मिल गया. अब ये वाला जो वोल्टेज है, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज VDR एंड दिस वोल्टेज इज VDI. अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन VDR एंड EVR, एंड वी नो इट. वी नो वन थिंग. हम लोग बहुत पहले एक चीज देखे थे, दैट इज VDR. दैट मींस दिस DC लिंक वोल्टेज. VDR इज नथिंग बट द रेक्टिफाइड DC voltage. Rectified DC voltage. Rectified DC voltage. That means this side voltage, the voltage in this side. This is same VDI inverter side DC voltage. Okay, is nothing but हम लोग देखे थे कुछ क्लास पहले कि it is EDR minus RCR into ID, where EDR is equal to VDO, that is the average maximum voltage, into cos alpha. याद आ रहा है? हम लोग क्या देखे थे बहुत पहले? ये देखे थे VDR equals to VDO cos alpha minus ID into RC. ये एग्जांपल पर ये इक्वेशन हम लोग निकाल लिए थे आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ जो तुम्हारा प्रैक्टिकल कंडीशन था, लीकेज रिएक्टेंस था, ये हम लोग देखे थे. याद आ रहा है? Yes, sir. ये इक्वेशन हम लोग देखे थे. ठीक है. सो उस इक्वेशन से हम लोगों को ये मिल रहा है EDR. So VDR, that is the rectified output DC voltage, is equals to VDOR cos alpha minus RCR ID. Here NB क्या है? NB, I am writing this NB. NB is the number of bridges connected in series. Number of bridges. Bridges means 6 pulse converter. Bridge means 6 pulse converter. Okay. Number of bridges connected in series. मतलब एक ब्रिज होगा तो NB इक्वल टू 1, मेरा पुराना वाला फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है. कनेक्टेड इन सीरीज. देखो, एंड व्हाट इज RCR? RCR इसका फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे. RCR इज इक्वल टू 3 by pi into
x into nb for number of bridges, मतलब actually एक bridge के लिए क्या होगा, RCR equals to 3 by pi into x. Here note down this RCR, and for the inverter case RCI, it is not any physical resistance, not any physical, or we can say not any ohmic resistance. They are not actually not any ohmic resistance. They are coming due to leakage reactance, due to leakage reactance of the converter transformer, due to leakage reactance of the converter transformer, of converter transformer. जैसे कि RCR equals to 3 by pi x, x is that leakage reactance, x is that leakage reactance of the converter transformer. मतलब हम लोग जैसे कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो if it is not any ideal condition, if the leakage reactance of the converter transformer, if we assume that there is some leakage reactance, and if we compute that leakage reactance, and if we include that leakage reactance into our calculation, then we will get this thing, RCR equals to 3 by pi. याद आ रहा है ये वाला, ये फॉर्मूला याद आ रहा है? मिड सेम के पहले हम लोग ये किए थे. यस सर. तुम लोग कॉपी देख लेना, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है. सो RCR का वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 by pi x into NB. NB is nothing, number of bridges connected in series. It may be 1, it may be 2, or it may be anything. You can connect depending upon the amount of voltage and amount of power to be transferred. Okay, NB is nothing, number of bridges that should be calculated depending upon the amount of voltage you need, amount of current amount of power you need to transfer. Okay, so an EDR is VDOR cos alpha. Here cos alpha we know the firing angle, and VDOR we know it is the maximum average voltage. Okay, it is the maximum voltage, maximum DC voltage. So again we write this formula. This is VDR equals to EDR minus RCR into ID. Same for inverter. Same for inverter. We will get EDI minus RCI into ID, where RCI it was same 3 by pi x into NB, and EDI it is also same. For EDI it was V DOI cos gamma. Gamma means extinction angle. NB gamma means it is extinction angle. पिछला वाला अल्फा था जो तुम्हारा फायरिंग एंगल ऑफ द रेक्टिफायर, गामा इज द एक्सटिंक्शन एंगल ऑफ द इन्वर्टर. नाउ do one thing. What is to be done? Write this. So we can write VDR equals to, EDR का वैल्यू क्या है बोलो? EDR का वैल्यू है VDOR cos alpha, NB VDOR cos alpha into NB, RCR into ID, and VDI equals to VDOI into cos gamma into NB minus RCI into ID. Is it okay? हम लोग जितना इक्वेशन मिले यहाँ से ये लिख सकते हैं, रिप्लेस कर दिए. यस सर. चेक करते रहना, क्योंकि मेरा पेज इधर उधर हुआ है ना, तो थोड़ा चेक करते रहना. यस सर. यस. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग VDOR को रिप्लेस करेंगे. VDOR क्या था? VDOR था तुम्हारा मैक्सिमम DC, मैक्सिमम एवरेज मैक्सिमम DC वोल्टेज था. एक बार मैं फिर भी इसको लिख देता हूं. इट वाज द एवरेज मैक्सिमम DC वोल्टेज. अब मुझे AC वोल्टेज से लिखना है, मतलब AC साइड वाला जो वोल्टेज है उसके साथ मुझे ये रिलेशन, ये इक्वेशन लिखना है. AC साइड वाला वोल्टेज से मुझे इक्वेशन लिखना है. कैसे लिखेंगे? वी नो VDO for rectifier, VDO for rectifier is 3 root 2 by pi
इंटू EVR। अब EVR क्या है, फिर से मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सी एक सेकेंड, see, this is a VDR, this is VDI, this is AC voltage, ER is AC voltage, EVR is AC voltage, VDR is DC voltage, okay, and we know one relation between them. Which relation? VDOR equals to 3√2 by pi into EVR. ये इक्वेशन याद आ रहा है? and VDOI equals to 3√2 by pi into EVI, where EVR is the line to line RMS AC voltage and we are converting into the maximum RMS voltage, that is maximum DC voltage, equals if we multiply 3√2 by pi. ये इक्वेशन याद आ रहा है? यहाँ पर ही था, कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे बहुत पहले। लेट मी फाइंड इट, कहां पर था? जैसे ये इक्वेशन हम लोग पहले डिस्कस किए थे, VD इक्वल्स टू DC साइड वोल्टेज VDO cos अल्फा माइनस RC इंटू RC इंटू ID ये था। और इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे VDO cos अल्फा, राइट, लाइक दिस, VD इक्वल्स टू VDO cos अल्फा। फिर व्हाट इज VDO, उसका वैल्यू था हम लोग कहां पर लिखे, इसके नीचे होगा, हाँ यहाँ पर VD equals to 3√2 by pi into V cos alpha. So what is VDO? This is the maximum voltage, 3√2 by pi into V. Okay, this one VDO. ठीक है? Yes, sir. एक बार अपना पुराना वाला जो नोट है उसको चेक कर लेना, ये हम लोगों को मिला था। AC, this is the AC voltage, AC line to line RMS voltage, AC line to line RMS voltage, and this is the DC average maximum DC voltage, average maximum DC voltage. Okay, सेम इन्वर्टर साइड में भी ये है। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पूरा एज ए इक्वेशन लिख लेते हैं। VDR equals to क्या था, VDOR, that means 3√2 by pi into EVR, पहले था NB cos अल्फा माइनस RCR into ID। अब VDI equals to NB 3√2 by pi EVI इन्वर्टर साइड cos gamma minus RCI into ID। ओके, अब हम लोग EVR एंड EVI उसका वैल्यू भी बहुत पहले लिख चुके हैं। क्या लिखे कि EVR equals to N2R by N1R into ER. ER is the this voltage AC side before transformer AC voltage ER. So if we write, then we can write it as VDR equals to, this is the final formula, NB into 3√2 by pi into N2R divided by N1R into ER cos alpha minus RCR into ID, and VDI equals to NB into 3√2 by pi into N2I by N1I into EI cos gamma minus RCI into ID, where RCR it is 3 by pi x into NB and RCI equals to 3 by pi x into NB.
देखो, इज इट ओके और नॉट? मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव था ये जो मुझे डीसी साइड वोल्टेज मिल रहा है रेक्टिफायर एंड में एंड इन्वर्टर एंड में, जो डीसी साइड वोल्टेज मिल रहा है उसका एक रिलेशन बनाना किसके साथ, बिफोर ट्रांसफॉर्मर जो मुझे एसी साइड वोल्टेज है, दैट मींस ईआर, दिस इज द बिफोर ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज, दिस ईआई इज आल्सो बिफोर ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज, ओके, उसके साथ एक रिलेशन बनाना विद द हेल्प ऑफ सम ट्रांसफॉर्मर रेशियो, दिस इज द ट्रांसफॉर्मर रेशियो, this is a firing angle, this is the extinction angle, okay, is it okay? ये equation ठीक है? Yes, sir. Okay, now keep note of this equation, ये हम लोग को काम में आएगा, okay, पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, अच्छा, from the first equation, this equation, from this equation we may draw, from this equation, from this equation, see, from this equation we may draw one equivalent circuit for rectifier end. This is EDR and current is flowing in this end, ID, EDR minus ID into RCR, and this is the output, VDR. And from this here I can draw like this, this is EDI, this is VDI, and current is flowing in this section, in this direction, ID, and this is will be minus RCI. अब देखो ये वाला जो दो इक्विवेलेंट सर्किट है ये ठीक है, ठीक है कि नहीं? ये इक्वेशन के साथ, ये इक्वेशन मुझे मिल गया था वाया सम फॉर्मूला, एंड उसके साथ हम लोग ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए. इज इट ओके? इज दिस, आर दोस इक्विवेलेंट सर्किट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी. Shadab, are you there? Shadab? Yes, sir. Okay. Please tell me, is this equivalent circuit is okay or not? नीचे वाला में सर इक्वेशन देखो, इक्वेशन से ये इक्विवेलेंट से आ रहा है कि नहीं, देखो पहले चेक करो, यूज करो अपना जो केवीएल है, यूज करके देखो. यस सर, आ जाएगा. आ जाएगा नहीं? करके देखो आ रहा है कि नहीं. इट इज माइनस आरसीआई एंड दिस डायरेक्शन इज आईडी. सी देखो क्या आ रहा है, माइनस प्लस, ड्रॉप क्या होगा, प्लस माइनस. सो दिस इज वीडीआई माइनस आईडी इनटू माइनस आरसीआई माइनस ईडीआई. यस सर, आ गया. आ रहा है ना? सब ठीक है. यस सर. ठीक है, तो फाइन. सो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको, इक्विवेलेंट सर्किट को. इधर हम लोग वी आर ड्राइंग द रेक्टिफायर. सो हम लोग इधर रेक्टिफायर सर्किट का जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं. इट इज ई डी आर, फिर मेरे को मिल गया आर सी आर, up to this it is VDR. Fine. Next, the DC link resistance, this is RD. Fine. Next मेरा inverter side minus RCI, this is EDI, and इधर मेरे को मिल चुका है VDI. Now we are going to write the equation by using KVL. लिखते हैं क्या होगा इसकी इक्वेशन, माइनस प्लस, सो EDR and current direction is this ID, in this direction current, same current actually. यहाँ पर RCR में वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ID into RCR.
आर डी में एक वोल्टेज ड्रॉप हो गया आईडी इंटू आर डी। अब यहां पर भी एक वोल्टेज ड्रॉप हो गया इन्वर्टर साइड में आईडी इंटू माइनस आरसीआई। अब माइनस सीडीआई इक्वल्स टू 0। So from here we may write hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes sir, yes. हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes sir. सो आईडी इज इक्वल टू, हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज आईडी? बोलो आईडी क्या लिखेंगे? आईडी इक्वल्स टू बोलो EDR minus EDI. गुड। डिवाइड बाय Divided by RCR. जतिन कुमार Plus शाह, बहुत जोर से RD. नींद आ रहा है क्या? EDR माइनस RCR. EDI RCR Yes sir. प्लस RD माइनस RCI RCR plus RD minus RCI. Right. Yes sir. हाँ। अब मुझे EDR एंड EDI का वैल्यू यहाँ पर मिल चुका था, इसके पहले यहाँ पर मिल चुका था। व्हाट इज EDR एंड व्हाट इज EDI मुझे मिल चुका था, तो मैं जस्ट उसको ही रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, उसको ही रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। सिंपल, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ इसको रिप्लेस कर देता हूँ। EDR का वैल्यू मेरे को मिला था NB इंटू 3√2/π इंटू N2R इंटू N1R ER cos अल्फा। दिस इज EDR। और EDI का वैल्यू क्या मिला था? NB इंटू 3√2/π इंटू N2I डिवाइड बाय N1I इंटू EI cos गामा डिवाइड बाय RCR प्लस RD माइनस RCI। सिंपल, हम लोग इसको रिप्लेस कर दिए। अब इसका एक छोटा सा इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। A1 इंटू ER cos अल्फा माइनस A2 इंटू EI cos गामा डिवाइड बाय RCR प्लस RD प्लस RCI, where A1 is nothing but the NB into 3√2/π into N2R by N1R, and A2 is nothing but NB into 3√2/π N2I by N1I. Okay, is it okay? This is ID. Yes sir. Now tell me how we can control ID. How we can control ID from this equation. This is the important equation you need to know. This is the important equation. Then you tell me how we can control this thing, this current ID. What are the various process? देखो, one is Sir angle change करके. right, क्या क्या एंगल है? एक है मेरा अल्फा फायरिंग एंगल, Yes sir. राइट। दूसरा है मेरा एक्सटिंक्शन एंगल गामा, एक्सटिंक्शन एंगल फॉर इन्वर्टर, एक्सटिंक्शन एंगल इट इज फॉर इन्वर्टर। फायरिंग एंगल फॉर यहाँ पर जो आ रहा है रेक्टिफायर के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, और तीसरा वाया चेंजिंग A1, क्योंकि A1 में क्या आ रहा है? देखो, A1 में मेरा ट्रांसफार्मर ट्रांस रेशियो आ रहा है N2R by N1R, राइट। अब ट्रांसफार्मर ट्रांस रेशियो कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं? वाया टैप चेंजिंग। Yes sir. So on load tap changing in the rectifier side. Same on load tap changing in the inverter side, because A2 भी आ रहा है, A2 के साथ मेरा N2I by N1I कनेक्टेड है। ओके, Yes sir. so we Yes, have 4 control methods: via firing angle, via extinction angle, via on load tap changing, and via on load tap changing for inverter. Now यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, क्या?
which one to be controlled, when, which one to be controlled and when, and in which side, controlled and when and which side. अच्छा, यहां पर देखो, one point to be noted, these two control, firing angle control and extinction angle control, it is the power electronics based control. It is very fast, but on-load tap changing and this is a tap changer, it is a mechanical control. This one is a mechanical control, thereby control, thereby it is slow. We will use this thing whenever we do not require any kind of fast changing. हम लोगों को जब कोई फास्ट चेंजिंग नहीं चाहिए तभी हम लोग ये स्लो वाला कंट्रोल यूज करेंगे, या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ चुका है कि मुझे टैप चेंजर यूज करना ही है, तभी हम लोग करेंगे मैकेनिकल कंट्रोल को, ठीक है. अदरवाइज दिस पोर्शन इज अल्फा एंड गामा कंट्रोल, दिस इज द कन्वर्टर कंट्रोल, देयरबाय इट इज वेरी फास्ट. ओके, यस सर. हाँ, अब हम लोग थोड़ा ये जान चुके, अब हम लोग देखेंगे कौन सा एंगल, कौन सा मतलब कहां पर कौन क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इंपॉर्टेंट, if gamma, there is an extinction angle, is less than gamma mean, some gamma mean minimum extinction angle is there, is less than gamma mean, then commutation failure may happen in the inverter. Commutation failure may happen, failure may happen in the inverter. gamma हम लोग इन्वर्टर में यूज कर रहे हैं, so हम लोग happen in the inverter. अब इसका क्या है मैं बोल रहा हूं, एक सेकेंड, इन इन्वर्टर मतलब इन नॉर्मल कंडीशन में HVDC लिंक में जनरली गामा का वैल्यू 17 डिग्री रखा जाता है. जनरली मतलब हम लोग एक रेंज पकड़ के चले तो 10 डिग्री टू 15 डिग्री गामा का वैल्यू इन जनरल रखा जाता है, ठीक है. तो हम लोग और नॉर्मल ऑपरेशन में हम लोग 17 डिग्री रखते हैं, ठीक है. इफ गामा का वैल्यू ऐसा हो गया कि लेस देन सम मिनिमम, सपोज इट इज लेस देन 10 डिग्री, सपोज, देन कम्यूटेशन फेलियर होगा. अब कम्यूटेशन का मतलब क्या है, कम्यूटेशन मतलब current is taking away from one device to another, that we know commutation. जैसे कि डीसी मशीन में एक कॉइल से दूसरे, एक कॉइल का जो करंट रिवर्सल हो रहा है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन करंट था, करंट रिवर्स हो गया, ठीक है. तो करंट हम लोग ले लिए फिर रिवर्स कर लिए, दैट इज द कम्यूटेशन. थायरिस्टर में क्या हो रहा है, थायरिस्टर में भी सेम, हम लोग थायरिस्टर को ऑफ कर रहे हैं, दैट मींस जो करंट थायरिस्टर में मिल रहा था, वी आर टेकिंग अवे दैट करंट फ्रॉम दैट थायरिस्टर टू अनदर थायरिस्टर. Okay, so that is the commutation. ये fail हो जाएगा. And if there is commutation failure, then there will be harmonics. That is called the interharmonics. Interharmonics will be generated. Is it okay? समझ में आया जो मैंने बोला? Very simple. गामा का वैल्यू गामा मिनिमम से नहीं जाना चाहिए. कम्यूटेशन नहीं समझ आया सर. कम्यूटेशन उसमें कैसे एक से करंट कैसे जा रहा है, कम्यूटेशन प्रोसेस हम लोग नहीं, तुम लोग नहीं पढ़े हो, फोर्स कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर, याद करो. हम लोग थायरिस्टर को स्विच ऑफ कर, टर्न ऑफ करने के लिए हम लोग कम्यूटेशन प्रोसेस यूज किए, याद आ रहा है कुछ, नेचुरल कम्यूटेशन. हाँ सर, उसमें ऑफ करने के लिए मतलब यूज कर दे. हाँ, जैसे कि सोचो एक थायरिस्टर, नेचुरल कम्यूटेशन में क्या हो रहा है, साइनसॉइडल करंट 0 हो गया तो इट इज रिवर्स बायस्ड हो गया, ये ऑफ हो गया, राइट. यस सर. हाँ, अब इसका मतलब क्या है, इन जनरल टर्म्स कम्यूटेशन मैनेजेबल इन जनरल कम्यूटेशन मींस करंट is taking away from that device, it is a general term. इसका मतलब देखो, करंट थायरिस्टर में फ्लो हो रहा था, मैंने उसको ले लिया करंट को, मतलब करंट का वैल्यू सोचो 5 एम्पियर था, मैंने उसको 0 कर दिया, ठीक है. दैट मींस करंट का वैल्यू 5 एम्पियर वाला जो करंट था मैंने उसको हटा दिया, सो दैट इज द कम्यूटेशन.
सेम डीसी कॉइल में भी जो डीसी कम्यूटेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, सपोज ये कॉइल में करंट इधर था, आईसी करंट इधर था, मैंने इसको क्या किए, पहले इसको जो करंट था इसको मैंने पहले जीरो किए, उसके बाद फिर करंट रिवर्सल किए, राइट? सो करंट वी आर टेकिंग अवे दिस आईसी फ्रॉम दिस कॉइल, ओके, we are taking away this IC from this coil, again then current reversal is happening, okay, so that is called the commutation process in general terms, ठीक है, समझ में आया? मतलब सर पहले करंट मतलब हाँ, जा रहा है, बोलो। उसके बाद जीरो होने के बाद फिर स्टार्ट हो रहा है और फिर रिवर्स हो रहा है, तो वो तो मेरा मतलब डीसी मशीन में हो चुका है, डीसी मशीन में वो सेम डीसी मशीन कम्यूटेशन। और थायरिस्टर में क्या है, थायरिस्टर करंट 5 एम्पियर था, मैंने उसको जीरो कर दिया, सिंपल वे में जो करंट जा रहा है मैंने उसको हटा रहा हूं, सिंपल वे में, ठीक है। 5 एम्पियर करंट थायरिस्टर में फ्लो कर रहा मतलब था, सर जीरो करना है। मतलब सोचो जो थायरिस कोई भी स्विच मान लो, कोई भी स्विच में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वी आर टेकिंग अवे दैट करंट, दैट मींस 2 एम्पियर करंट को मैंने जीरो कर दिया, तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द कम्यूटेशन प्रोसेस, दैट मींस दैट इज कॉल्ड द टर्न ऑफ। 2 एम्पियर करंट एक स्विच से जा रहा था, मैंने उसको ऑफ कर दिया, तो ऑफ कर दिया मतलब क्या है, 2 एम्पियर करंट हटा दिया, यस सर। समझे ना, उसको ही कम्यूटेशन बोल रहा है और कुछ नहीं। यस सर। समझे? जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, पहले 6-1 ये सीक्वेंस था, उसके बाद 6 ऑफ होने के बाद 1-2 ये सीक्वेंस चालू हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वी आर टेकिंग अवे द करंट फ्रॉम 6 एंड 2 इज टर्न्ड ऑन, मतलब वी आर टेकिंग अवे द करंट फ्रॉम 6, तो वी आर टेकिंग, सपोज 6 में करंट तुम्हारा 6 एम्पियर जा रहा था, we are taking away that 6 ampere current and making it 0 ampere, तो क्या होगा, this 6 switch will be turned off, यस सर। ओके, ये बात समझे? यस सर। यस सर। this process is called the commutation, सिंपल, इसका नाम ही है कम्यूटेशन, सिंपल, एक ही लाइन में जो करंट जा रहा था, मैंने तुमको कुछ लॉजेस दिए फिर ले लिए तुमसे, ठीक है, तो दैट इज द कम्यूटेशन, ओके। यस सर। सो इफ गामा का वैल्यू इन्वर्टर में गामा मिनिमम से कम हो जाएगा तो कम्यूटेशन फेलियर हो सकता है, इसीलिए हमेशा गामा का वैल्यू शुड बी सम हाउ ग्रेटर देन गामा मिनिमम। हम लोग क्या करते, फॉर सेफ्टी वी कैन से, हम लोग क्या करते कि गामा का वैल्यू जो एक कांस्टेंट रख देते, ठीक है, कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल फॉर सेफ्टी हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल, सो दैट इज वन कंट्रोल मेथड, इट इज कॉल्ड CEA कंट्रोल मेथड और कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल कंट्रोल मेथड, ओके this is one method that is called the constant extinction angle control method, this is one method। ऐसे ही हम लोग का टोटल 4 मेथड है, उसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में घुसेंगे। अच्छा, सो आज के लिए फिर तुम लोग का ड्राइव क्लास है, सो इज इट ओके? आज जो हम लोग देखे, कुछ डाउट, एनी डाउट? पहले हम लोग थोड़ा पावर रिवर्सल देखे, उसके बाद पावर रिवर्सल के बाद हम लोग देखे कि HVDC कंट्रोल का कुछ इक्वेशंस देखे, जो मैं इस नोट को मैं तुम लोग को भेज दूंगा और एक कॉपी में भी एक नोट बनाकर भेज देंगे, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि हम लोग देखे कि कौन सा पैरामीटर वेरी करने से कंट्रोल हो रहा है, फिर हम लोग आगे जाएंगे कौन सा किसको कहां पर क्या वेरी करना है क्या नहीं करना है, ऐसे ही तो हम लोग वेरी नहीं कर देंगे, कुछ रूल है उसको हम लोग देख लेंगे। सो any doubt? No sir. Okay, so we may leave and your drive class will be going to be started soon. Okay, thank you very much, कल मिलते हैं।